It is currently 10 p.m. 13th of August 2025 and I have to leave for Krishneshwar on 14th, that is tomorrow in the morning at 3 because my train is at 5 and I have not packed my bag. I am still working, doing my office work and I don't know how I'm going to pull through this, but let's see. Everyone, it is 4 a.m. and I am ready. Packed my bag at 2 a.m. And now I'm going towards the car to get into it. Hi everyone, so now finally I am in the car. जैसे मैं कार में बैठी, it started raining and now we are going to pick up Pranjali. I already have Ridesh with me. He's going with my office friend for the first time. He's not even met like 90% of them. He's only met Yogesh. So yeah, now me, Pranjali and Ridesh will go to CSMT and board our train from there, and rest all of them are gonna get in from Thane. So yeah. अभी हम CSMT station पकड़े, so we are boarding the Tapovan Express, but there are a lot of trains that run through Mumbai to Aurangabad. You can check them out. But this was the most convenient train for us because it leaves at 5:30 in the morning and you will be in Aurangabad by 1:32. So now it is 4:45ish. So it's better that you come early, right, rather than being late. So now we'll wait for Yogesh. So 4 of us will board from here and the rest all of them will board from Thane. Platform 14. But this is renovated, all of this. ये नहीं था पहले. Yeah, this is so cool. Looks so nice. Pretty. I think ये पूरा renovate हुआ है. Or I don't know, was it like recently or it was done पहले? Because this is my first time coming after like 6 years to CSMT to board a train. And हाँ, ये sleeping pods वाला reel भी बहुत देखा था. This is where the sleeping pods are. Tapovan Express is a very old train, so all the interiors and the seating and everything is according to that. So don't expect like a lot, but yeah, it's only like a 7-hour journey, so chalega itna, so we just have to sleep and we have to go. But now Sumit has booked all illogical seats for us. So मैं दिखाती हूँ what I'm trying to say. Illogical seats मतलब. This is what you will get in a AC chair. God, this is so difficult to pull. मैंने बोला सुमित को कि मुझे विंडो सीट चाहिए, ठीक है, ये वाली सीट. सुमित भैया ने क्या किया, ये एक विंडो की है, वो एक विंडो की है, ये एक विंडो की है. हाँ, and I was like so insensible. This is, why did you do that? अरे भाई ऐसा क्या नसीब हो गया? ऐसा लिखोगे ना तो बाबू लेगा तुम्हें. हम लोग इन ट्रांजिट है गए. हाय अमाया. भाई सुबह के 7 बजे हमारा ना स्क्रीन और काई दिसत नहीं है. सब ब्लैंक है. प्रांजलि, व्हाट इज दिस? क्योंकि सास भी कभी बहू थी. मैं सास बनने की प्रैक्टिस कर रही हूँ. कभी किसी की बहू बन. हम खेलेंगे हाउसी. दिखाओ योगेश भाई. योगेश गॉड हाउसी टिकट इन हिज बैग. कौन सा कलर चाहिए? योगेश का तो व्हाट्स इन द बैग चैलेंज करना चाहिए. ही हैज कंफर्ट, रेन एंड एवरीथिंग इन हिज बैग. ये निकल एंड उसने 4 जोड़ी कपड़े भी भरे हो बैग में. पिंक है. आपको कौन सा कलर चाहिए मैडम? सब कलर है अपने पास. ग्रीन में नहीं मिलेगा. अभी हम लगाएंगे इस पे 10-10 रुपए का बेट. सुबह के 7 बजे पूरा ट्रेन सोया है. ये हमारा प्राइस मनी है, ठीक है. ये डिलॉयट के एम्प्लॉइज ने 20-20 रुपए लगाए हैं टिकट के लिए. 10-10 लगाए हैं और हमारे पास टोटल प्राइस मनी है 60 रुपीज. अच्छा नंबर निकाल. कैमरा में दिखाओ. और हमें तो बताओ.
पेरी पेरी फ्राइज भी अभी वो बच्ची को दे छोटी बच्ची है। क्या है 71। 71 ये ठीक है मैं कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक मार। 38 भी नहीं है मेरा। ये 2 रुपए की कॉइन से ये लोग मार्क कर रहे हैं 10 रुपए के प्राइस के लिए। 61 है? नहीं मेरे पास नहीं है 61। मेरे पास है। चलो अब मैं निकालूंगी। कौन सा नंबर आया यार? यार योगेश व्लॉग में जाएगा ये पता है ना। क्या 22 रुपए की 67 और 70। ये 10 रुपए। हो गया मेरा प्रो हो गया क्या? फोटोमध्ये काय फोटोमध्ये टाकू 45 आणले ये बाबा आ गया जो ये देखो नंबर दो। नंबर की अभी नंबर बताओ अभी नंबर अंजलि मैं जिला दी तुझे। अभी वेरिफिकेशन हो वेरिफिकेशन दो टिकट लेके नहीं जीता। तो मैं नेक्स्ट गेम खेलेगा ही नहीं। मैं हमें का पैसा मैं भरेगा 41 असं प्लीज से चाळीस 46 काय नाही मागितलं तुझ्याकडनं 40 के लॉस पे हो 22 29 विद दिस 29 पे मैं जीत जाऊंगी। 25 रुपीज जीतूंगी 29 पे। 71 ये तो पहले ही हो। 71 नाही झाला अरे 4 आहे तो 74 खुद ही क्या काटी पता नहीं। कम ऑन 29 29 29 दो टिकट लेके बैठा है और कुछ नहीं जीता। एक रो नहीं जीता ना कुछ जीता। वेरीफाई करेंगे हम लोग पहले हम लोग वेरीफाई करेंगे ले इधर दे ले मेरे पास 30 55 ठीक है 6 ये 25 47 अरे नहीं है 64 नहीं है भाई है। आप जीत गए मैडम हाय गाइस वी ऑलमोस्ट रीच औरंगाबाद। अभी हम दौलताबाद स्टेशन के बाहर रुके हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गोना गेट डाउन एट औरंगाबाद एंड उसके बाद में वी आर गोना एक्सप्लोर लाइक द सिटी एंड देन वी विल हेड टू आवर स्टे विच इज नियर कृष्णेश्वर टेम्पल and yeah I'll show you and take you along in my little explore of Aurangabad city and yeah let's see. Welcome to Aurangabad everyone. नहीं 4:15 भी निकले ना तो क्या ही आधा घंटा तो जाएगा लगने में 5 बजे दौलताबाद पहुंच के 1 घंटे में क्या ही करेंगे। दौलताबाद देखो करना है सुमित। देखते हैं कल देखते हैं टाइम मिला तो क्योंकि 5 बजे पहुंचते कल भी नहीं होगा कल पूरा दिन एलोरा में जाएगा तो 5 वो रास्ते में आता है दौलताबाद करने में 2-3 घंटा लगता इट्स लाइक अ प्रॉपर बिग फोर्ट एंड अ ट्रैक। नहीं बट फिर भी तो बीबी direct का जाएगा मकबरा उधर। ये सब नहीं कर पाएगा। सेव ये सब्जी आमच्या घरी कसं 3 चपाती उरली असते तर 1.5 आमची 1.5 भाजी तसंच असतं तू एकुलता एक यातलं तुला दिस कसं माहिती? शेव की भाजी इज वेरी फेमस इन मराठवाड़ा रीजन ना Yes. बट दिस इज ऑल्सो राजस्थानी डिश ना। वो वहाँ पे अलग होता है शेव ही अलग होता है ना वहाँ पे तो अच्छा ये कौन सा शेव है? घाटिया वाला घाटिया वाला शेव। और वहाँ पे वो तीखा वाला रहता है तीखा शेव होता है जो अच्छा। पतला रहता है ना हाँ हाँ ये ऑरेंज है उधर राजस्थान वाला रेड रहता है जरा। ओके सो राइट नाउ वी आर eating lunch at this place called Sai Prasad वो भोजनालय साई प्रसाद ही है ना। हाँ सही बता हाँ साई प्रसाद भोजनालय एंड वी ऑर्डर सेव सब्जी एंड पनीर टिक्का मसाला देख सकते हो आप इधर all of it is really good and now we are getting ready at a random in the same hotel we ate food क्या कर रहे हैं फिनिश लंच एंड फिर हम एक कार देख रहे थे हमारे ट्रैवल के लिए बट पीपल ओवर ईयर विल चार्ज यू लाइक 2000 रुपीज
to take you to sightseeing. That is Bibi Ka Maqbara and Soneri Mahal, that Pawan Chakki and all. They are charging us 2,000 rupees for it. But we negotiated and we got a Innova for 1,800 and now we are waiting for that. अच्छा So uncle, our driver uncle told us a very interesting fun fact कि I was asking him कि why is Aurangabad called the city of gates. तो वो बता रहे थे कि पहले औरंगाबाद जो सिटी था उसको पूरी तरह से बाउंड्री दिया था and बाउंड्री देने के टाइम पे they made these gates for entrances. So now most of the gates are not maintained but some of them are getting repainted and everything. तो अगर कोई गेट बीच में आया तो I'll show you. बीबी का मकबरा के इधर है. Here is the booking counter. So now they are gone to book the tickets or the ticketing counter and they have like I think restaurants and some washrooms and everything over here. So this is all the facility that they have given. You can read here. These are the tickets. इंडियन ना मिला रे फेस से नहीं दिखा And I think ये tickets इधर देने पड़ेंगे and फिर you will get entrance. And I think you'll have to keep them safe also. मैं बताती हूँ. तो we just took a guide. It costed us 200 rupees. तो उनने तो वही सब बताया जो बाहर लिखा है. So he was just explaining us ki how this is made by Aurangzeb's son and not by Aurangzeb for his wife. It is made by his son in the memory of his mother. And this is similar to the one that was made that is made in Agra, that is Taj Mahal, and how this is called the Taj Mahal of the Deccan. And also that this is probably inspired from Taj Mahal because Shah Jahan is like a grandfather to Aurangzeb's son. So yeah, and it is smaller in comparison, and this is made out of 20% marble and 80% POP. So all the work that you see is Mughal inspired, and also it has some elements of Parsi architecture as well because both the engineers were Indian and a Parsi. So there is a combination of both. And there is the tomb and there are two क्या बोलते हैं उनको मॉस्क है दो बट वो ऑपरेशनल नहीं है. एंड उन्होंने बताया कि ये जो भी गार्डन देख रहे हो दैट इज ऑल्सो मुगल इंस्पायर्ड. तो दिस गार्डन इज मेंटेन्ड एंड देयर आर फाउंटेन्स. अभी वो चल नहीं रहे हैं, दैट इज अंडर मेंटेनेंस. बट या सो उन्होंने एक और चीज़ बोली कि this is made in the memory of a mother and that was made in the memory of a wife. So India is just ruled by women, and it was very funny I found. And yeah, it is really pretty. So I've never seen Taj Mahal, so this is my first time seeing some monument as big as this. So I don't know in comparison if Taj Mahal would look better or this looks better, but for now this looks nice. जैसे 32 एंट्रेंसेस है, स्मॉल डोर, 32 स्मॉल डोर्स. एंड उसके ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है. इट्स अ 2-floor स्ट्रक्चर एंड द डोम इज सेपरेट. एंड उन्होंने एक और कुछ तो डिफ्रेंसिएशन बोला था, मुझे याद नहीं हुई. वॉज टेलिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ताजमहल एंड दिस बीबी का मकबरा. सो बट इट्स प्रिटी एंड द प्लेस दैट इज लोकेटेड इन इज ऑल्सो वेरी नाइस. लाइक पीछे पूरे माउंटेन रेंजेस दिखते हैं. मैं तुम्हें दूर से दिखाती हूँ कैसा लगता है. But now we will enter it. So this is what I was talking about कि जो पीछे का सीनरी है इट्स रियली प्रिटी. लाइक इट्स ऑल कवर्ड इन लश ग्रीन माउंटेन. सो द लोकेशन इज रियली नाइस एंड देर आर 4 entrances that you can enter the maqbara in. This was the southern entrance, I think, the first entrance. There's a second entrance there, third entrance here and a fourth entrance here.
बट इसमें पानी चालू नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे सारा पानी बंद रखा है। They are mocking the guide. ये मीनार है, इस पे एक बंदे ने सुसाइड किया था, इसके बाद बंद कर दिया। ताजमहल में आर्किटेक्ट के हाथ काटे थे, वैसे ही इधर नहीं काटे थे। ये इधर भर रहे, ये शायद रोड हो रहा है सब। ये उनने हमें बताया ना कि 20% मार्बल और बाकी सब पीओपी है। 20% मार्बल, 80% बाकी सब प्लास्टर है। नीचे का ताजमहल पूरी तरह से मार्बल से बना है। ये औरंगजेब का बेटा शाहजहां का पोता, उसकी माँ मतलब प्रांजलि ने बोला गोल करने, तो लड़की गोल कर रहे हैं फॉर द रील। कुछ नहीं सुन रहे। Oh, this is very huge. तो ये मॉस्क का एंट्री है विच इज़ प्रोहिबिटेड, तो ये सब बंद है अभी। आई थिंक पहले होता होगा इधर प्रेयर्स, बट अभी तो नहीं होते हैं। इधर इंफॉर्मेशन दिया है कि दिस मॉस्क वाज बिल्ड ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म ऑफ द टूम टू इट्स वेस्ट इज बिलीव टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द 3rd निज़ाम ऑफ हैदराबाद। एंड देन यू कैन रीड। अभी हमने जस्ट नोटिस किया कि if you notice that Aurangabad, I think city is completely surrounded by like mountains, so it makes it very strategically safe. So maybe इसके लिए this was so important. I have no idea about the history of this place, so I'm just guessing. Yeah. I was just wondering how old is this wood, मतलब, and all the carvings look so perfect. All of it looks so perfect. अच्छा अंदर से, अच्छा नीचे से टूम के लिए एंट्रेंस होगी। दिस इज द टूम। ओह दिस इज सो प्रिटी। अभी हम एग्जिट कर रहे हैं, तो इट ओनली टेक्स लाइक 30 minutes टू चेक आउट द एंटायर प्लेस, नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सी, बट इट्स अ रियली नाइस पिकनिक स्पॉट इफ यू आर प्लानिंग फॉर लाइक अ डे आउट और समथिंग लाइक दैट। How it looks. तो करंटली वी आर एट देवगिरी फोर्ट। इट्स इन दौलताबाद, तो ये थोड़ा दूर है औरंगाबाद से, बट इट्स ऑन द वे टू कृष्णेश्वर। एंड मैं बहुत आई एम सिक, तो आई जस्ट टुक लाइक 2 medicines एंड नाउ ये लोग टिकट्स ले रहे हैं, तो ऑलरेडी 4:30 हो गया है एंड इट क्लोजेज एट 6, सो वी विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल because this was a very important fort in the history of the Mughal Empire and before that as well. And Sumit will give more information about it in some time. तो ये टिकट है, this costed us 25 rupees per person. And अभी हम एंटर करेंगे और सो देवगिरी मीन्स द क्या बोलते हैं, देवताओं का पहाड़। तो ये जो फोर्ट है पहले बनाया था यादवास के भिल्लम पंचम ने, और एट दैट टाइम इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फोर्टिफाइड सिटी। और ये जो यादवास थे दे वर डिफ्लेक्टेड बाय चालुक्यास। पहले राष्ट्रकूटास थे जिन्होंने जो एरेला केव्स बनाया, उसके बाद चालुक्यास आए एंड उसके बाद यादवास इवेंचुअली डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस एंड दिस वाज कैपिटल ऑफ यादवास। देन इट कम अंडर द खिलजी एम्पायर। उसके बाद जब खिलजी गए तब मोहम्मद बिन तुगलक ने ही ट्राइड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू हियर दौलताबाद, बट इट इवेंचुअली फेल्ड, सो ही शिफ्टेड हिज कैपिटल बैक अगेन। एंड उसके बाद दिस वाज द कैपिटल ऑफ निजाम शाही ऑफ अहमदनगर फॉर अ ब्रीफ टाइम। और उनमें एक मलिक कंबर करके था, ही बिल्ड अ सिटी कॉल्ड खड़की विच इज़ टुडेज औरंगाबाद और संभाजी नगर। और अभी ये जो है ना, यहाँ पे ना गेट पे ये दिखेंगे स्पाइक्स दिखेंगे जो मेन गेट के ऊपर थे। तो पहले के ज़माने में क्या करते थे, पागल हाथियों को छोड़ते थे गेट के ऊपर ताकि दे विल क्रश द गेट्स। तो पहले क्या करते थे, ये जो स्पाइक्स है ना इसके ऊपर पॉइजन लगा के रखते थे और गेट को बंद करते थे।
तो हाथी आता था, इसके ऊपर लग जाता था, तो स्पाइक से वजह से वो मर जाता था. Oh. दिस वाज वन ऑफ द डिफरेंस. मैकेनिज्म. वन ऑफ द थिंग अबाउट दिस ना, पहले यहाँ पे चारों जगह पे ना पानी था और एक ही एंट्री था, एक ही एग्जिट था. हाँ. और इधर अगर अंदर गए ना तो देयर इज वन फॉल्स एग्जिट भी है. हाँ. तब जब जो शत्रु का जो सैन्य था जो अंदर आता था, तो दे यूज्ड टू गेट कंफ्यूज कि वो फॉल्स एग्जिट की तरफ जाते थे एंड इट इवेंचुअली वो पानी में जाता था रास्ता. अच्छा. सो दैट्स व्हाई इट वाज वन ऑफ द मोस्ट लाइक अनकॉन्करेबल फोर्ट्स. तो हाउ अलाउद्दीन खिलजी कॉन्कर्ड इट, उसने पहले तो सीज किया एंड ही स्टार्ट बम्बार्डिंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग एलिफेंट्स एंड ऑल. उन्होंने डायरेक्ट दारूगोला यूज किया एंड दे इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड द फोर्ट आफ्टर अ वेरी मंथ लॉन्ग सीज. Okay. And that's how this comes under Delhi Sultanate. And then they rename it again to Daulatabad. क्या हो गया उधर? कुछ तो मिला है इन लोग को शायद. क्या कर रहे तू? Oh भाई sorry. I What? think कुतुब मीनार का रेप्लिका है ये बनाया हुआ है. पर कुतुब मीनार वाज आल्सो बिल्ड फॉर पर्पस ऑफ क्या बोलते हैं, टू लुक ना, फॉर सेफ्टी पर्पसेस. वो व्हाट इज सरस्वती वेल? यहाँ पे ना एक सेक्शन ऐसा भी है जहाँ पे पूरा ऐसा अंधेरा है. तो पहले क्या करते थे, एनिमी आर्मी को आने देते थे उस पर्टिकुलर पार्ट में और फिर पीछे से गेट बंद कर देते थे. ओह इट्स अ स्टेप वेल. ओह क्रेजी. नाइस. इट्स अ स्टेप वेल. तो बोला ये हाँ. भाई डेंजर है क्यों करने के लिए, पूरा स्टीप है. हाँ तो पानी कैसे भरते होंगे? अच्छा इधर उतरने के लिए है. बट इफ यू फॉल भाई मरेंगे. इसलिए तो पहले मरते थे. सच अ डैड एनर्जी पर्सन डूड. निकालो. तो उसको बाले किला बोलते हैं. बाले किला मींस वो जो ऊपर दिख रहा है ना. हाँ, वेयर द किंग स्टेज और द रूलर स्टेज. नो इट्स नॉट लाइक बाले किला. मतलब क्या होता है Women- कि एनिमी अगर कॉन्कर करेगा, हाँ. सो दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर देम टू कॉन्कर. अच्छा. तो शिवनेरी का भी एक बाले किला है, जो बाले किला यूजुअली सबसे ऊपर होता है. हाँ. और स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, ऊपर बाले किला रहता है और उसके नीचे स्टोरेज रहता है. हाँ. तो क्योंकि पहले के वेलफेयर कैसे रहते थे, लोग ये करते थे, वेड़ा देते थे ना. हाँ. They used वेड़ा to मतलब? lay a siege around the Okay, fort. okay. अभी ये fort ऐसा है, तो what enemy will do? हाँ. They will lay a siege all around it, and they will cut off All all the around the supplies. fort. हाँ. All around the fort, and they will Okay. cut the food supplies. हाँ. तो अभी ये जो ऊपर दिख रहा है, that is the बाले किला. हाँ. And ये जो नीचे सब दिख रहा है, there will be a storage facility. और ओके. वो स्टोरेज ऐसा रहता था कि वो साल तक एटलीस्ट चले. हाँ. If enemy lays a siege, तो साल तक चलना चाहिए. हाँ. And that's how Mughal, how they conquered it. उन्होंने 6 मंथ तक सीज रखा. इवेंचुअली दे रन आउट ऑफ फूड सप्लाईज अच्छा. एंड दे गेव. They surrendered. Yeah, they surrendered. अच्छा. Oh, there are monkeys. My God, they're gonna take my. पूछना था ये forts में. हाँ. जैसे कि most of the forts what I saw in Rajasthan and all, they had chambers for women as well. तो Right. ये forts में women रहती थी? हाँ रहते थे ना. मतलब राजस्थान में वहाँ पे ना टेरिटोरियल अलग है. इन मतलब महाराष्ट्र में हाँ. जियोग्राफी प्लेज अ मेजर पार्ट. हाँ. क्योंकि यहाँ पे सह्याद्री है. सो इवेंचुअली देयर इज अ लैक ऑफ स्पेस फॉर लैविश प्लेसेस. तो महाराष्ट्र के इफ यू ऑब्जर्व ऑल ऑफ द फोर्ट्स, They look relatively very simple. Yeah. very simple. हाँ. And उस टाइम पे everything geopolitical situation was about survival. It's not about lavishness. Okay. So eventually, women also took that part, warrior Okay. role. So they didn't demand for like separate palaces and all. Okay. क्योंकि if you observe the capitals, जो पहले रायगढ़ गोरना था, हाँ. it didn't even have. It's like आज के ज़माने में you can call it as 1 BHK only. Okay, that's small. Yeah. The difference is जो राजस्थान का जो टेरेन है, हाँ. इट्स फॉर हेड टू हेड वॉर. हाँ. हाँ. मतलब दो हाँ. आर्मी सामने सामने आएगी. हाँ. इन महाराष्ट्र द डिफरेंस इज इट्स बेस्ड ऑन हिल. गुरिल्ला हाँ. कि दो आर्मी सामने नहीं आएगी.
हाँ. They will lay a siege, or either they will just attack Okay. from the back. Got it. And the history of this region is whoever excels in guerrilla welfare will win this territory. Okay. Otherwise, you have to use a lot of brute force. Okay. That's why probably the Mughals were very. Yeah, they were very unsuccessful in this. They eventually conquered, but they paid a heavy price. क्योंकि one of the reason औरंगजेब want to conquer the Deccan is like शाहजहां ने इतना डेप्थ में डाल दिया था एम्पायर को. So he has an eye on the southern sultanates. Southern में there were 5 sultanates हाँ. जो बहिमनी एम्पायर से आई थी. बहिमनी एम्पायर was one empire which got dissolved in 5 empire. Okay. Which was अहमदनगर निजाम शाही, हाँ. बीजापुर की आदिल शाही, then इरिश शाही, बरीश शाही and कुतुब शाही. Okay. गोलकोंडा फोर्ट पता होगा. हाँ, गोलकोंडा फोर्ट. हाँ. तो इरिश शाही बरीश शाही वो शॉर्ट लिव्ड. हाँ. बाकी एम्पायर्स ने इवेंचुअली दे कॉन्कर्ड इट. बट 3 मेजर प्लेयर्स थे व्हिच वाज आदिल शाही, ये निजाम शाही और कुतुब शाही. तो अभी इनके पास ना बहुत सारा मतलब ये था what you can say treasures थे. So one of the reason Aurangzeb want to conquer the Deccan is to get hold on that treasure. Because he was in a lot of debt. Yeah, he was in a lot of debt. Then Marathas came and then it became a battle of ego. Ki now I want to conquer it anyhow. Okay. So he lost the sight. He want to conquer that treasure and he eventually wasted a lot of resource. Okay. And he tried to engage with Maratha to head war, but it didn't happen. Marathas focused on guerrilla welfare and they eventually came out on top after his death. As we know history. आपल्याला वर जायचं आहे काला पहाड गणपति मंदिर है वरती. डार्क पैसेज भी है कोई तो वहाँ पे डार्क चीजें होती थी. चल ऐसा का. No, he mentioned dark passage में क्या होता था ना? It was used as a camouflage. तो उधर डार्क पैसेज में लोगों को लेके जाते थे. हाँ. एंड उधर पानी में उन लोगों को मार डालते थे. एक्झिट पण केलेलं त्यांनी. म्हणजे त्यांना वाटायचं शत्रू सैन्याला इथून एक्झिट आहे, तिथून गेल्यावर डायरेक्ट पाण्यात. अच्छा, उधर होता का था? आपण इथं जायचं वर रंगभूमीवर. चलो. Now we have only 20 minutes to explore the place. After 20 minutes ये शट हो जाएगा. तो जो लोग नीचे उतर रहे हैं हमें बोल रहे हैं कि you only have 20 minutes. So let's do it, guys. क्या बोल रहे थे? ये तो खराब हो गया So this was like main fort और चारों जगह से ऐसा पानी था पहले. And there was only single entry and single exit. This that पहले ये नहीं था. हाँ. Original time पे. अच्छा. Because this was capital for almost 300 years ना. Okay. So they made sure that this is very invincible. Okay, there is water everywhere. Yeah, there is everywhere and there used to be crocodiles. हाँ. मराठा के टाइम में बंद कर दिया. हाँ. अच्छा, तो ये तो ऐसा ब्रिज होगा जो से खुलता बंद. And very single entry, single exit. Okay. Actually ना रोमन डिजाइन के ऊपर बेस्ड था. जाने बंद कर. हाँ, obviously भाई नीचे क्यों जाए? क्या जैसे तुले नीचे जाने वाले का भी ऊपर से ही गंदा कर रहे हैं. अच्छा, हाँ, इधर बंद कर दिया है. देखना कितना प्लास्टिक है नीचे. डार्क पैसेज. तो हाँ, ये मेन है. अगर सपोज एनिमी का ट्रूप यहाँ तक आ भी गया इसको क्रॉस करके, दे विल फेस हियर डार्क पैसेज में. हाँ. फिर वहाँ पे उनको इवेंचुअली ट्रैप करके दे विल किल देम. तो I can say that Daulatabad fort was one of the most invincible forts. और इसका डिजाइन एक्चुअली इट इज वी कैन ड्रॉ पैरेलल टू द रोमन वेलफेयर एज वेल. Okay. क्योंकि जब सेकंड यूनिफॉर हुआ था ना, हाँ. तब हाउ Give a reference of what was the हाँ, second unit for. पहले यहाँ पे आते Okay. हैं. और यहाँ पे एक्चुअली छुपे रहते थे सैनिक. अच्छा. सैनिक भूत बन के आता था. हाँ, तो क्या भागने की पटके चार तलवार सुट्टी पेट में डालने का है. चल चल. Try still up. Coming from. ये तो नेचुरल था. ये इट वाज अ नेचुरल हिल जिसको खोद के बना. अच्छा, ये खोदा होगा ना? ये पूरा एक पार्ट होगा हिल का. दिस वाज अ हिल. देवगिरी हिल्स ओरिजिनल था.
इसके अच्छा ऊपर ये नाव आया। ओह सो ये जो फोर्ट का डिजाइन है ना, इट वाज वेरी सिमिलर टू रोमन वेलफेयर। तो प्यूनिक वॉर हुआ था कार्थेज, जो करंट मेडिटेरियन सी है ना, तो रोमन एम्पायर और कार्थेज के बीच में। तो उस टाइम ऐसे फोर्ट हुआ करते थे विच वाज सराउंडेड बाय वाटर एवरीवेयर, ओके और एक सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट किया था। ओके एंड वी कैन सी द सिमिलर पैरेलल हियर। ये फोर्ट में चारों टाइप से वाटर है। हाँ this is mostly it will be poisonous, or The it will water? be, yeah, infested by crocodiles. ओके And even if some enemy comes in, हाँ they will be trapped into some like void, some black void. like the dark passage that we just saw. सुमित ये जो इतना खोदा है, how did they do it? It is such a big. ये जो पानी है that was naturally था। अच्छा पहले से ही ऐसे सराउंडेड था माउंटेन। फिर उसमें थोड़ा खोद के जो नियर का झील था, झील पहले से ही था। अच्छा बस उन्होंने void रखे। ये देखिए फॉल्स एग्जिट है यहाँ से। दिस इज द ओरिजिनल वे, और ये बस भूल भुलैया के लिए बनाया है, डिफ्लेक्शन के लिए। ओह जब एनिमी आएगा तो वो इधर उधर जाएगा, दे विल बी डाइवर्टेड। एनिमी गया क्या बहुत नीचे ही है। अरे अरे भाई, योगेश नहीं, डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड। दिस इज द वे। चलो 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 गाइस। भाई तो हमारा सीनियर है That's why he wanted to come here. Oh bro, ये चांद मीनार, अभी बाले किला अभी तक नहीं आया है। ये इधर से पानी दिख रहा है सभी जगह पर। कहाँ पानी ये है? देखना, उधर से लेके उधर, ओ हाँ, इवेंचुअली वो पूरा इसको फोर्ट को इनसर्कल सराउंडेड है। करेगा। हाँ एंड ओनली वन गेट, दैट नैरो एंट्री। हाँ, that is the gate. Crazy. आवाज आला? पिकॉक कुठे दिसला तुला? आवाज होता, आवाज होता। अब आई थिंक हम यहाँ पे रुक जाएंगे। इसका और ऊपर है, एज यू कैन सी कीर्ति नीचे रह गई है, तो हम 3 लोग ही है फिलहाल। केलं तेव्हा एम्पायर वाचवायला पूर्ण आता ताकद लावली। After a very tiring climb and a very tiring day as well. तो भाई सुमित पूरा पी भी गया, आधा पी गया वो। गन्ने का जूस 20 बड़ा ग्लास 20 रुपए। योगेश ना मेरे व्लॉग को कॉमेडी व्लॉग कर देता है एकदम। We finally reached our stay. It is really close to the temple. The temple is somewhere there. This is our stay. Now we'll check in and then have dinner and just go to sleep, I think. अभी we are going for dinner. हम hotel में check in कर लिए थे. We were vibing to some music and then we were reposting stories and deciding what to do. Should we go रात को, क्योंकि हमारा होटल ओनर बोल रहा था कि तुम रात को ही दर्शन ले लो एंड चेतन तुम सुबह भी ले लो, बिकॉज ही डजंट नो इफ बिकॉज श्रावण का मंथ चल रहा है तो क्राउड अगर ज़्यादा आ गया तो फिर यू नो अभी शाम को क्राउड कम था तो वो बोल रहे थे कि तुम अभी दर्शन ले लो, बट वी आर सो टायर्ड दैट वी डिसाइडेड कि कल सुबह हम 5 बजे उठ के दर्शन ले लेंगे. सो नाउ जस्ट वी आर हेडिंग आउट एट 8. वी आर हेडिंग आउट टू ईट फूड एंड उसके बाद में विल कम एंड स्लीप. आई होप वी स्लीप एंड देन टुमारो टेक दर्शन एंड देन एक्सप्लोर एलोरा. My nose is blocked, I'm sorry. एंड ये मंदिर के पास बहुत सारे स्टे ऑप्शंस है, गेस्ट हाउसेस है.
तो तुम ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो और यू कैन लाइक डायरेक्टली फाइंड ऑन गूगल और yatriधाम.com, तो ये तुम्हें सब मिल जाएंगे. And really affordable, like the room that we are staying in is like for 2,000 for a room, AC and with a geyser and everything. And I find it very reasonable for 4 people sharing it. So you can check for other options as well. They have non-AC and all. And ये कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है. And उसके सामने ही there are a lot of, not a lot, like a few food stalls that you can choose from. और ऊपर उधर होटल्स भी है. तो फिर अभी देखते हैं. अभी तो ये हम कहाँ जा रहे हैं, शिव मेवाड़ भोजनालय में. देखते हैं कैसा है खाना. दिस थाली तो आई गिव ओवरऑल 8 on 10. तेरी थाली सेम थाली है 8 on 10. 8 on 10. तेरा उत्तपा डोसा कितना? क्या करेगा 10 में से? 6. 6.5. अच्छा वही 6.5 दे दिया. और ये सब्जी तो हमारे वाली सब्जी से नहीं, इतनी नहीं, अलग ये है. अलग है. हाँ. कैसा? ठीक है, मतलब एडिबल. एडिबल रेटिंग. Now we are come to the shop. राजरी और योगेश आज ये स्कार्फ ले रहे हैं, शॉल्स ले रहे हैं. क्या है ये, स्कार्फ या शॉल कुछ तो है. They have these jute bags. My brother will kill me if I get a new bag, so I'm not gonna take any bag. क्या आपको कैलाश मंदिर देखना है? यहाँ पे देखो, देखिए इतना सुंदर मंदिर, आर्किटेक्चरल मार्वल है ये. वर्ल्ड में ये एक सब ही है लस्सी पिए हैं और अभी ये स्प्राइट पी रहे हैं और ये फिर एसी में सोएंगे. और बीमार पड़े ना फिर देखना. जो खुद को नजर ना लगाए. नजर नहीं लगा रहे हैं और हम ये बता रहे हैं बस कि अपना ध्यान का, सेहत का ध्यान रखो. ठीक है. ये हमारे रूम में क्या टाइम पास कर रहे हैं ये लोग. क्या हुआ? हाँ क्या स्कैम किया तेरे को उसने. Who will be the lucky guy to sleep with me and Pranjali in the same room? But on a different bed, please. Excuse me. लूजिंग टीम है, टीम विनिंग टीम है. हैं तुम लोग ठीक है चलो. हां एक टायर करेक्ट नावणार 4 लोकांमध्ये नावणार. काय होणार कधीतरी होईल ना. Night guys. See you all tomorrow morning. 4:30 उठ जाना. ठीक है. हाँ. 115 है ना वो. ऐसे चले यार.